Good morning, friends. Today we are discuss chapter number 3, which is structural stresses in fundamental of machine design. The syllabus of this chapter is theory of simple bending, their assumptions, then derivation of equation of bending, neutral axis, determination of bending stresses, then section modulus of rectangular and circular, maybe it is hollow or solid, then I, T and angle and channel sections. Okay, this I at T angle is the shape of the beams. So let's start. Theory of simple bending. Okay, let us consider a beam. This beam name is G, H, K, and J, and the neutral axis is EF. This is the side view. Let us consider an elementary area. It is called PQ. When we applied equal couples or equal couple into into opposite sides, then a bending is occurred in this section. So the change in length means when we are observed that the neutral axis does not feel any compression or tension, but when we are seeing that G and H increase this size, so it is called tensile stress. And when we see J to K, this field decrease in their length, so they are compressive in nature. And the elementary change in elementary length is P dash and Q dash. So according to the theory of simple bending says that consider a beam subjected to a pure bending moment as shown in figure. All layers of beam which were of same length originally do not remain at same length. न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल सरफेस, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो लेंथ है कौन सा E से F तक का, ये E से F जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है जहां पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो द बॉटम लेयर जी एच स्ट्रेसेस टू G dash H dash and top layer J K has compressed to J dash K dash. There is one layer EF between GH and JK which has suffered no change in length. Means EF is equal to E dash F dash. Such layer is known as a neutral layer or neutral surface. And the assumptions of theory of simple bending is, first one is the material of beam is perfectly homogeneous, uniform throughout. Okay. Then second, material of beam is isentropic, same elastic property in all direction. Then third one is the beam material is stretched within its elastic limit and hence obey Hooke's law. Then the modulus of elasticity E is same in tension as well as compression, and the transverse section which were planned before bending remains plane after bending. Okay. Okay. Then second last is the each layer of beam is free to expand or contrast independently. The beam is in equilibrium. Let's start their derivation. The nomenclature of this derivation is capital M is stand for bending moment acting on beam. So bending moment का जो unit होना चाहिए वो है Newton mm. Then R is the radius of curvature of beam after bending. Then theta is the angle subtended by the beam at the center of arc. I is the area moment of inertia of beam cross section. Then y is the distance of layer PQ
from neutral axis, and sigma b is the bending stress induced in layer PQ, E is the strain in layer PQ, and dA is the cross section of layer PQ. Let us consider the whole diagram. हमने जो भी मेजरमेंट्स लिया है वो आर में दिए, न्यूट्रल एक्सिस पे लिया है, तो न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर तक का जो रेडियस है वो आर है। न्यूट्रल एक्सिस से जो एलिमेंट्री एरिया है उसका डिस्टेंस जो है वो वाई है। ओके, चलो, तो स्ट्रेन इन लेयर PQ, स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ? तो PQ माइनस P डैश Q डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है? तो PQ। तो ये देखिए चेंज इन लेंथ क्या बताया? नाउ PQ इज इक्वल टू EF होगा, सो और इज इक्वल टू E डैश F डैश। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया? E डैश, ये मतलब अल्टीमेटली इसने यहाँ से स्टार्ट किया कि PQ जो आया, मतलब ये चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो PQ माइनस P डैश Q डैश। अच्छा, और PQ जो है क्या वो EF के इक्वल आएगा? तो अगर EF के इक्वल है तो E डैश F डैश के इक्वल आएगा, और वो जो होगा वो R इंटू थीटा के इक्वल आएगा। सो नाउ P डैश Q डैश इज इक्वल टू, अब ये देखिए P डैश Q डैश अगर चाहिए तो ये कितना है? R, और ये कितना है? Y। तो हमने क्या लिखा? R माइनस वाई इंटू थीटा। ये चीज यहाँ पे आया कि R माइनस वाई इंटू थीटा। अब ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे पुट किया, अगर ये वैल्यू यहाँ पे चेंज पुट किया तो चेंज इन लेंथ में R थीटा माइनस R माइनस वाई इंटू थीटा अपॉन R थीटा, और ये सबको जब कैंसिल आउट करके देखेंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी y बाय आर। अब एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को पुट किया, तो इक्वेशन बना सिग्मा अपॉन E इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और सिग्मा अपॉन वाई मतलब हमने इसको क्रॉस में ले लिया, तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू वाई अपॉन आर। अब फॉर अ गिवन बेंडिंग मोमेंट एंड अ बीम E एंड R आर द कांस्टेंट। तो अगर E और R अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई क्या है? तो फिर से याद दिला दे रहा कि एक्सिस, सेंटर एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस से एलिमेंट्री एरिया तक का डिस्टेंस है। So stress is proportional to distance of layer from neutral axis. So moment of resistance force on layer PQ about neutral surface. ठीक है, हमने क्या किया? फिर से वही एलिमेंट्री एरिया, मतलब एक रेक्टेंगल लिया जिसका न्यूट्रल एक्सिस EF है, डिस्टेंस Y है, और एलिमेंट्री एरिया जो होगा वो होगा PQ जिसका एरिया है DA। ओके, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन लेयर प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस फोर्स to the bending resistance force on cross section of layer PQ। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? तो स्ट्रेस इनटू इट्स एरिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? तो हमें हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो ये जो एरिया इसके डिवाइड में आएगा वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, then moment of resisting force on layer PQ about neutral surface EF। तो हमें अगर मोमेंट निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की मतलब फोर्स कितना हुआ? तो DF इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस Y, और फोर्स की जगह मैंने अगर लिखा सिग्मा DA इनटू Y। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ऑफ बीम, अगर मैंने दोनों का समेशन निकाला तो समेशन निकालने पे क्या दिख रहा है? तो सिग्मा की वैल्यू आई E अपॉन R इंटू वाई, ये हमने पहले निकाल के रखा है, तो Y इंटू DA इंटू वाई, और वाई स्क्वायर इंटू DA। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इंटू DA की वैल्यू हमने पहले पढ़ लिया है, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो M इज इक्वल टू E अपॉन R summation of y square into dA, और y square into dA is converted into y, तो m is equal to E upon R।
तो फॉर्मूला हमारा बना m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये क्लियर है? ओके चलिए, तो अब अगर पूरे इक्वेशंस को हम लोग देखें तो हमें पता था सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है और ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई हुआ। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन बना वो होगा m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और दिस इज कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन ऑफ फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? तो इट इज द लाइन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर और सरफेस विथ एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स में लिखवा रहा है। On one side of neutral axis they are compressive stress and the other side of neutral axis they are tensile stress. The net normal force on the beam section is equal to 0. So resisting force on cross section of the layer PQ is equal to sigma into dA, and net normal resistance force on cross section of beam is summation of sigma into dA or E upon R into Y into dA. So net normal resisting force on beam section is equal to 0. अगर ये सबको मैंने 0 इक्वेट किया है तो E upon R कभी भी 0 नहीं होता है, तो Y dA is equal to 0. So moment of area about neutral axis is equal to 0. So in order to find the location of neutral axis, find out the centroid of the section. The line passing through the centroid and normal to the plane of bending is the neutral axis of the section. Means अगर आपको neutral axis find out करना है तो सबसे सिंपल है कि आप उसका centroid find करो, और centroid क्या बोल रहा है? The line passing through the centroid and normal to the plane of bending is the neutral axis. ठीक है, distribution of bending stress across section and maximum bending stress. ठीक है, मतलब हमने जो आई और टी सेक्शन पढ़ा था अब उसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो आप लोग को पता ही है कि ये एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन, ओके आप लोग को पता है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर था, तो इसने यहाँ से ये दोनों को पुट किया, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन आई इंटू वाई, और लास्ट में स्टेटमेंट दिया कि m और i जो है वो फिक्स है, तो सिग्मा इज इक्वल, मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू y. सो इन सबसे कंक्लूजन क्या निकला? तो बेंडिंग स्ट्रेस इज proportional to distance from neutral axis. The maximum bending stress is the outermost layer. ठीक है, हमेशा याद रखना outermost layer पे काम करती है। तो maximum bending stress, तो sigma max is equal to क्या होगा? m into y max divided by I. चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है? तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमने पढ़ा है अभी, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू m अपॉन आई इंटू वाई मैक्स। अच्छा, i अपॉन, अगर ये y मैक्स को i के नीचे डाल दिया जाएगा तो ये हो जाएगा i अपॉन y। अच्छा, i अपॉन y इट इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? m अपॉन z। सो z इज इक्वल टू क्या हुआ? i अपॉन y मैक्स, इट इज कॉल्ड सेक्शनल मॉडुलस। ओके, सेक्शन मॉडुलस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो हमने अब जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हमें पढ़ना है उन सब का मॉडुलस सेक्शन क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है वो अभी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे जैसे पहला है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? तो आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्स, और आई एक्स एक्स की वैल्यू पाई डी रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 62 और डिवाइडेड बाय डी बाय 2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो जेड इज इक्वल टू हो गया पाई डी क्यूब बाय 32। अगर यही सेम फॉर्मूला अगर हॉलो के लिए यूज करेंगे तो हॉलो के लिए भी रूल्स सेम रहेंगे। तो पाई डी रेज़्ड टू पावर 4 माइनस डी रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू डी। ओके, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स अपॉन वाई, तो बी एच क्यूब बाय 12 डिवाइडेड बाय बी बाय 2। तो ये फॉर्मूला बना बी एच स्क्वायर, एक्चुअली ये बी नहीं है ये एच है,
ये है BH³/12 अपॉन H/2, तो हो गया BH²/2। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इलिप्टिकल सेक्शन के लिए अपन बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला है I(x(x)/y। तो I(x(x) की वैल्यू होगी पाई B इंटू H³/64 डिवाइडेड बाय H/2, तो ये हो गया पाई BH²/32। ओके, देन इसी तरीके से उसने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस निकाले हैं। अब क्रॉस सेक्शंस निकालने के बाद बेसिक फॉर्मूला अभी एक आता है जिसमें, एक मिनट, ओके, इसके बाद इसमें फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आया। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे जिसमें जनरली हम आई और टी, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए ये जो फॉर्मूला और न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।